Hi Facebook. Hello Instagram. Hi Facebook. How are you all doing today? Yes, a big hello to all of you. Yes, chat your hi in the chat box. Say hi, say hello. Yes. So friends, we are waiting for few more people to join. Then we will start our live session. So what else? How's life going? You can post your comments in the chat box. Yes, I'm doing great. I'm at Sampark live. Today we have started Sampark live series. So good evening everyone. Let's start. Yes. So friends, myself, Reet Rupani, I am the director of Universal Wellness Center. I am a certified sound healer, access consciousness bars facilitator, and batch flower therapist. I am working with Sampark as a support director. So, friends, we have started this Sampark Gurukul live series on Facebook and Instagram. In this live series, we will conduct trainings by our Sampark members every alternate Saturdays around 7 p.m. So, friends, the purpose of this Sampark Gurukul live series is to provide trainings to the society from our hidden talent of our Sampark Gurukul trainers. Friends, now I would like to tell you more about Sampark. Yes. So friends, Sampark is a non-profitable complete solutions for small and medium enterprises and startups to grow their business exponentially. Sampark provides training, mentoring, networking, self development, and introspection opportunities with a long term vision to help our members to achieve multifold business growth. Friends, Sampark admits only ethical businessmen with strong credibility and commitment to quality work. When trustworthy, reliable, and professional entrepreneurs become a group, growth of each one's is guaranteed. So, friends, this was all small introduction about our Sampark. Now, friends, I would like to introduce our today's Sampark Gurukul trainer, Anaga Doglikar. So, friends, yes, she is the founder and CEO of Digital Platter. She is a digital marketing consultant and service provider, master in mass communication, and she is certified digital marketer and service providing services with more than 12 years of industry experience, and she is skilled in establishing online presence. So, friends, her today's topic is need of transforming your business digitally due to COVID 19.
And I would like to add one more thing. Currently, she is conducting the session on occasion of World Digital Media Day. So, friends, that's all from my side. And now I would like to welcome Anagha to conduct the session. So, welcome Anagha, and friends, stay tuned. Yes. Hi, hello all. How are you? And thank you so much to Reed for introducing me so nicely. And she has already discussed and shared you about Sampark, which is the platform through which we are interacting today. Thank you so much, all of you, for joining. I can see so many people there are there on Instagram. I can see so many people are there on Facebook. So hello all, and let's really start today discussing about today's requirement of all the businesses to transform themselves into digital media, into digital platforms. Yeah, so we all of us are aware of the current situation which is happening due to COVID-19. So because it's that, all so many businesses are facing so many challenges and all that. So that's why we are here to help you out, all of you, to understand what exactly the need of the hour is. Yeah, so many businesses are there which are uh, just a second. Yeah. So, COVID-19 has become a worldwide pandemic because of which the industries and the businesses all over the world, across the world, are facing different challenges. Yeah. So, with this worldwide pandemic, we have got to understand and we have got to realize and experience so many transformations in these 3 5 months. Yeah. So now we know that it's been a tremendous rise in digital usage, usage of digital platforms throughout these 4 5 months. I can say so. इससे पहले बेवरेजेस हमने शायद बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में हमने बेवरेजेस ऑनलाइन नहीं परचेज किए थे बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 we have realized and we have experienced that we have so many people have ordered beverages, you know, all kind of beverages like liquor have been ordered online, right? We have started on ordering groceries. पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट में ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर करते थे बट कोविड-19 की वजह से अभी और भी ज़्यादा हम कॉशियस हो गए हैं वी आर पीपल across the globe are kind of fearful to go outside and do the purchase of even daily needs. तो उसकी वजह से ग्रोसरी का भी डिजिटली ऑर्डर्स या डिजिटल परचेज बढ़ गया है, राइट? सो ये जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक ग्रोसरी, लाइक मेडिसिन, ये सारी चीज़ों को लोग ऑर्डर करने लगे हैं ऑनलाइन. सो दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि जहाँ पे ग्रोसरी और मेडिसिन जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ रही हैं. सो वी शुड बी एबल टू रियलाइज दैट बाकी जो चीज़ें हैं जो परचेज हो रहा है और होने वाला है आने वाले दिनों में वो भी डिजिटली ही होने वाला है, राइट? जो मतलब बेसिक चीज़ें ही अगर डिजिटली लोग परचेज करना चाह रहे हैं, परचेज करना प्रेफर कर रहे हैं, तो बहुत लग्जरियस आइटम्स होंगे या फिर कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड आइटम्स होंगे. ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो बेसिकली सभी लोग ऑनलाइन ही परचेज करना प्रेफर करने वाले हैं, मतलब ऑलरेडी प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है सभी लोगों ने. So if such is the case, such is the behavior of a purchaser. So business people have also really need to understand कि उनकी ऑनलाइन या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. या सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल द बिजनेस पीपल हैव टू रियलाइज कि अगर मेरा बायर, अगर मेरा परचेजर, अगर मेरा कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल है और वो
चीज़ें ऑनलाइन प्रेफ़र करना चाहता है या प्रेफ़र करना उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सो आई शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन। जब वो लोग ढूँढ रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स या मेरे सर्विसेज़ ऑनलाइन, तो मेरा प्रेज़ेंस ऑनलाइन होना कितना ज़रूरी हो गया है। अगर जब कोई मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस ऑनलाइन ढूँढ रहे होंगे और उस समय उन्हें अगर मैं नहीं दिख पाऊँगा या फिर मेरा बिज़नेस वो उन्हें ऑनलाइन नहीं दिख पाएगा, दैट मीन्स फॉर देम आई एम नॉट एक्जिस्टिंग, राइट? सो मान लीजिए कोई ग्रोसरी शॉप है, वो बगल में ही है और आज कोई भी परचेज़र कोई पर्टिकुलर ग्रोसरी आइटम ढूँढ रहा है ऑनलाइन, और अगर आपका ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं है, तो आप उसके लिए आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो। अगर वो घर पे बैठ के चाह रहा है कि वो ऑर्डर करे, कुछ चीज़ें ढूँढे कि वो व्हिच इज़ द नियरेस्ट ऑनलाइन शॉप, ग्रोसरी shop that is open today, because of this lockdown, that on odd and even days, opening hours and all that, ये सारी चीज़ों की वजह से अभी लोग घर से ही ढूँढना स्टार्ट कर दिया है कि कौन से बिज़नेसेस, कौन सा शॉप आज खुला है, कौन सा शॉप आज लाइक मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो मेरे नियर बाय में कौन सा शॉप आज खुला है, राइट? क्योंकि कोई भी बंदा घर से बाहर निकल के सर्च नहीं करना चाह रहा, वो पहले ही डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेता है कि आज अगर मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर मुझे ग्रोसरी चाहिए है, सो ऑनलाइन मैं ऑर्डर करता हूँ, या फिर अगर मुझे बाहर खुद को भी बाहर जाके खरीदना है तो उसका डेस्टिनेशन प्री डिसाइडेड होता है, इसीलिए वो फ़ोन पे पहले ही ढूँढ लेता है कि मुझे ये चीज़ अगर चाहिए है तो मेरा नियर बाय कौन सा शॉप खुला है इस वक़्त, और मैं कहाँ से चीज़ खरीद सकूँगा। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आज वो बस घर से ऐसे ही निकले और फिर मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये शॉप बंद है तो मैं दूसरी शॉप पे जाऊँ, दूसरी शॉप बंद है तो तीसरी शॉप पे जाऊँ। ये चीज़ आज नहीं करना चाह रहे हैं लोग। दैट्स व्हाई इट इज़ रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपके जो बायर्स हैं उनके लिए यू हैव टू प्रेज़ेंट ऑनलाइन। Yeah. So things are like have changed so much that that is like a smallest of the kirana shop और smallest of the मोची कह लीजिए, प्लम्बर कह लीजिए, कोई भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, हर एक छोटे इंसान, छोटे बिजनेस की भी जरूरत है आज की, दैट ही और शी हैज टू हैव हिज और हर प्रेजेंस ऑनलाइन। तो फिर बड़े-बड़े बिज़नेसेस के लिए तो डेफ़िनेटली दिस इज़ द केस कि उन्हें ऑनलाइन प्रेज़ेंस अगर उनका नहीं रहेगा, सो देयर इज़ नो मच ऑफ द मतलब उनके लिए सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम होने वाले हैं। इफ दे आर नॉट दे आर इन द लॉन्गर रन, सर्वाइवल चांसेस आर रियली वेरी लो in case of like their non-presence of digital on digital platform. राइट? सो जैसे मैंने अभी ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल दिया, उसके अलावा मोबाइल शॉप्स हैं, रिचार्जेस, व्हाट ऑल थिंग्स पीपल वांट टू बाय ऑनलाइन। फर्स्ट थिंग, अगर या फिर उनको फिजिकली भी अगर चीज़ें खरीदनी है तो भी उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया आज अभी के वही लाइक मुझे जाके शॉपिंग मतलब ये दुकान से जाके वो दुकान से ये इधर या उधर इस तरह से मुझे ढूंढना नहीं पड़े। मुझे पहले ही मैं घर से डिसाइड कर लूँगा मुझे ये शॉप ओपन है तो मैं उस शॉप में डायरेक्टली जाके आई परचेज। और इस केस में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होता है और सब अगर कोई ढूंढ रहा है आपकी सर्विसेज को, मान लीजिए कोई ग्रोसरी है, वो ढूंढ रहा है कि मुझे ग्रोसरी खरीदनी है एंड यू आर द नियरेस्ट शॉप टू हिम, और उसने जब सर्च किया तो उसे दिख रहा है कि आप क्लोज हो, तो शायद वो आज नहीं जाएगा, वो आपके जब ओपनिंग आवर्स होंगे तब जाएगा, राइट? दिस इज द वेरी पॉसिबिलिटी। बट अगर उसको आज कुछ प्रोडक्ट चाहिए है, उसने ढूंढा, आप वहाँ पे अवेलेबल, आप ओपन हो, फिर भी अब आप ऑनलाइन आपका प्रेजेंस नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये शॉप ऐसी आसपास में है जो कि ओपन है, so that means you are the losing an opportunity to get a customer, right? That's why all the businesses are really very much in need of digital transformation at this moment. So ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी सी डीप में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं।
सो जैसे कस्टमर के साइकी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19. So we have to consider that customer is looking for new. Okay, new purchase. They have their purchase behavior has totally transformed. So so we have to find out what is the new like what is the new normal for them. So new normal for them is like searching online at this moment and then ordering that particular product. If that particular service is available online, like nearby shops, वो ऑनलाइन परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स गुड. नहीं तो दे वांट टू मेक द डिसीजन ऑन एन एट देयर होम ओनली कि मुझे कौन सी दुकान से जाके ये प्रोडक्ट खरीदना है, राइट. देन हाउ सेकेंड चीज हमें फाइंड आउट करनी है हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू गेन trust on the brands. Okay, there are so many brands which are really taking great level of effort to establish and strengthen their presence online. So जहाँ पे जिस ब्रांड ने उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हुआ है ऑनलाइन, उन्हीं ब्रांड्स पे आज अभी जाके लोग ट्रस्ट करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा. फिजिकल मार्केटिंग तो वैसे भी अभी नहीं होने वाली है. So every business need to understand the importance. Need to understand the power of online marketing. Need to understand the power of internet marketing. Yeah. Then उनका स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ कोर्स. थर्ड चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेंडिंग पैटर्न. तो उनका स्पेंडिंग पैटर्न भी काफी हद तक आई मीन काफी हद तक एज इन इट हैज गॉट री ट्रांसफॉर्म. सो वो स्पेंडिंग पैटर्न एज इन आज बहुत हिचकिचाहट हो रही है थ्रू आउट द मार्केट टू एक्सचेंज द करेंसी. या जो हमारे फिजिकल करेंसी है वो एक्सचेंज करने में लोगों की काफी ज्यादा हिचकिचाहट बढ़ गई है. सो एवरीवन वांट्स टू pay it digitally, be it any payment gateway application or any bank transaction, anything it is, right? So यहाँ पे भी I know बहुत सारे businesses ने already अपना currency digitally transform कर लिया है, but still we have to keep on checking all the platforms as well. That are we available on all the required platforms? सारे जो जितने भी platforms available हैं उन सारे platforms पे are we there? We have to really get a check on it. भले ही हमारा छोटा भी business होगा, but every business need to get that account like physical ऑनलाइन पेमेंट अकाउंट. भले एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर क्यों ना हो, उनको भी दैट पेमेंट थिंग हैज टू दे हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट पेमेंट मोड into the digital mode. Okay. Then we have to read. Fourth point comes in channel. Which digital channels people are using it now. So आपका जो customer है वो कौन से digital channels use कर रहा है, because in these months when people were at home, people are still at home. और जब घर पे वो थे तो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करना काफी एक्सटेंट में बढ़ गया है, उनकी वो आदत काफी एक्सटेंट में बढ़ गई है, राइट. सो इसकी वजह से उन्होंने काफी सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी एक्सप्लोर किए हैं. दैट्स व्हाई उनका प्रेजेंस काफी सारे सिर्फ अभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं है, काफी ज्यादा हद तक उन्होंने और नए प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए हैं. सो a business really need to find out कि उनका टारगेट ऑडियंस जो है वो तो कितने सारे और कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना उसने अभी ज्यादा स्टार्ट कर दिया है. तो ताकि हमें भी पता चले कि मुझे मतलब हमारे बिजनेस को मार्केट में कौन से लेवल पे जाके करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हमें यूज करना है. ऑल दीज थिंग्स वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड, वी रियली हैव टू फाइंड आउट. ओके. देन the after this while finding out all the things whether I'm available for spending thing on online in online in digital modes, or and whether we are aware of the platforms, aware of the digital platforms where my customers are available and all that. ये सारा research and analysis हो जाने के बाद I have to really I have to really create a new business model, right? Is complete because the transformation required, because the
world is transforming, because my buyer behavior is transforming. I have to be available with a new business model wherever my audience, wherever my customer, wherever my target customer is available. Yeah, so I really have to create a new business model. जैसे हमने रिसर्च और एनालिसिस की पहले ही बात करी है. सो जैसे हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा एफिशिएंट बायर कहाँ पे है, कौन से चैनल्स और स्ट्रैटेजीज उसको पसंद आने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा प्रेजेंस हमें डालना पड़ेगा, तब वहाँ से हमें इफेक्टिव मार्केटिंग रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, बिकॉज देर आर सो मेनी न्यू कस्टमर्स आर ऑल्सो कमिंग इन, जो फिजिकल बाइंग पहले उतना एक्सटेंसिवली नहीं करते थे, बट डिजिटली उनका बाइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ बाइंग. जैसे अगर हम क्लोथ्स और जैसे हम अमेजोन और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, सो जब जब ये नए सारे प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो हमारे हमारे हमारा क्लोथिंग और फुटवेयर, ये सारा जो परचेस बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया. हम जब फिजिकली जाके जितनी शॉपिंग करते थे उसके कंपैरिजन में आज जब हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करके हम जब ये क्लोथिंग और फुटवेयर की शॉपिंग करते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा हद तक मल्टीप्लाई हो गई है. Right, so similar is the case with all the new things which are which will be purchased online now. अभी तो just the new research has come up कि जैसे छोटी से छोटी चीज जैसे ग्रोसरी और लिकर जैसी चीजें अगर ऑनलाइन परचेस की जा रही हैं, so now the buyer trend for even the automobiles also have changed into digital platforms. Just the recent research by Cars 24 has shown कि लोगों ने ऑनलाइन लाइक लोगों का ऑटोमोबाइल परचेज हैज बीन increased very drastically, because अभी काफी लोग प्राइवेट कम्यूट करना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना चाहते. उसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसकी वजह से ऑटोमोबाइल परचेज काफी ज्यादा हद तक बढ़ने वाला है, बढ़ने के चांसेस हैं. ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड, लाइक यूएस में तो बहुत ज्यादा ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं. एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग इवन कार्स ऑनलाइन. सो एक तरफ ग्रोसरी जैसी छोटी और एकदम डेली नीड्स वाली चीजें हैं, और दूसरी तरफ कार जैसी लग्जरियस आइटम है, राइट. सो ये ही ऑनलाइन परचेस किया जा रहा है. सो यू कैन रियली कैलकुलेट कि ये जो अगर दो छोर हैं बिजनेस के, और ये अगर दो छोर हैं कंज्यूमर्स के परचेस बाइंग बिहेवियर के, तो इनके बीच में जो जो जहाँ जहाँ पे आपका बिजनेस आ रहा है, तो ईच एंड एवरी बिजनेस नीड टू हैव online presence and need to prepare itself for its buyers to give them ease to purchase from them. Okay, so that's why that research and that new business model development is really very much important. Then you have to like establishment of your business is really, I mean, greatly required. You have to create yourself as a brand online. सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करिए जहाँ जहाँ पे आपके एंड यूजर्स अवेलेबल हो सकते हैं. उन सारे प्लेटफॉर्म्स में यू हैव टू क्रिएट योर प्रेजेंस. नॉट ओनली यू हैव टू क्रिएट योर प्रेजेंस, बट इस तरह से यू हैव टू मेक इट कि कोई भी आपका एंड यूजर अगर आपको सर्च करता है कोई भी कीवर्ड यूज करके, तो वो सारी मतलब आपके बायर का इंटेंशन क्या होगा, आपके बायर के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब उसको नीड होगी आपके प्रोडक्ट की, तो वो किस तरह के वर्ड्स डाल के सर्च करेगा गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में. So you have to include all those words in your profile, in your presence, so that जब भी कोई सर्च करेगा, so Google या फिर कोई भी सर्च इंजन उनको आपके प्रोफाइल तक, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस तक पहुंचा सके. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? Because I have so many times, so many clients keep on putting me a very common question कि हमने वेबसाइट तो बना ली है, बट हमारे वेबसाइट से कोई इंक्वायरीज हमें नहीं आती है, मतलब लोग हमारे वेबसाइट तक नहीं पहुंच रहे हैं वगैरह. बट हियर आई वुड रियली टेक द अपॉर्चुनिटी टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ वेबसाइट बना लेने से या फिर सिर्फ गूगल मैप बिजनेस पेज बना लेने से हम लोग हम तक नहीं पहुंच सकते. हमें इट्स लाइक कि हमने बस
पेज या वेबसाइट क्रिएट करके गूगल के किसी एक फोल्डर में रख दी है, बट उसको प्रॉपर जब हमें लोगों तक उसे पहुंचाना है तो उसे प्रॉपर तरीके से मार्केट भी करना होगा. So that's what digital marketing is. That's what online marketing is. मतलब आपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना के तो रखा है, बट उसे प्रॉपर तरीके से मार्केट भी करें ताकि जब लोग आपको ढूंढे तब वो आपके ऑनलाइन प्रेजेंस तक पहुंच पाए. राइट. सो वेबसाइट को भी आपको सिर्फ बना के रख दिया और फिर लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग जब भी ढूंढे आपके प्रोडक्ट को तो आप तक पहुंचे, आपकी वेबसाइट तक पहुंचे. ऐसा नहीं हो सकता. आपको आपकी वेबसाइट जैसे हम अगर कहीं पे फिजिकल हमारी दुकान खोलते हैं और जगह जगह पे हम पैम्पलेट्स पोस्टर्स चिपका देते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, ये सारी जब हम चीज़ें हैं एफर्ट्स लेते हैं, वैसे ही जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं सो वेबसाइट को भी मार्केट करने की हमें ज़रूरत होती है. यू हैव टू ऑप्टिमाइज जो भी सर्च इंजन होते हैं, जहाँ जहाँ से जिन जिन सर्च इंजन को यूज़ करके लोग आपके प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हैं, तो उन सारे सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली आपको आपका बिजनेस प्रेजेंस का लाइक आपको आपका वेबसाइट मार्केट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया उसके बाद किस तरह से प्रॉपर्ली उसे मार्केट करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो यू हैव टू नेल nail the digital marketing, nail all the digital platforms wherein you can market your online presence. वेबसाइट बनानी है तो वो वेबसाइट को आप प्रॉपर तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आप पुट करके उसका उसका मार्केटिंग कर पाओगे. आपने फेसबुक पेज बना लिया है, यूट्यूब चैनल बना लिया है मान लीजिए, सो वो उन सारे चैनल्स को या फिर फेसबुक लिंक्डइन पेज को, आपके इंस्टाग्राम हैंडल को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, ट्विटर हैंडल को, इन सारी आपके प्रेजेंस को आप कैसे प्रॉपर तरीके से मार्केट कर पाओ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, फाइंड आउट करनी है. सो फॉर दैट यू नीड टू आई नो ये मैं सब चीज़ें जब बता रही हूँ आपको तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि किस तरह से मार्केट करना है ये बताइए. राइट. सो इसके लिए आपको आपकी टीम को एम्पावर करना होगा. नाउ यू हैव टू रियली एम्पावर योर टीम डिजिटली. उनको समझाना होगा. जैसे आप आपकी टीम से शायद कॉलिंग करवाते होंगे या फिर उनको फिजिकली मार्केट में भेजते होंगे फॉर इन पर्सन मार्केटिंग या फिर डोर टू डोर मार्केटिंग. उसी तरह से आपको आपकी टीम को डिजिटली मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट का या सर्विसेज का या बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है उसके लिए आपको आपके टीम को एम्पावर करना होगा. यू हैव टू रियली स्पेंड टाइम फॉर योर staff to make them understand how to market your product, service, as well as your business online. Yeah, so you have to align a proper team internally. या तो फिर it's always better you go for any external agency or a consultancy जिनसे आप ये सारी services ले पाओ. But when it comes to hiring something, there are so many freelance digital marketers, there are so many consultancies across our country. Yeah, आपको कहीं से भी आपको you can find out any proper agency, digital marketing agency which can help you into all these things. There are so many experts, so many people, so many even you can find out so many interns जिन्होंने certification courses किए हुए हैं digital marketing में. They can really help you out into that. And then you can really measure the performance. तो ये चीज़ें लाइक कैसे मेजर करना है, उनको कैसे डील करना है, उनसे आप एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको खुद को भी थोड़ा सा एम्पावर होना पड़ेगा रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस. क्योंकि हर एक बिजनेस आई मीन डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल. मतलब अगर किसी और बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर वर्क करना बहुत अच्छे से वर्क करी है तो दैट डजंट मीन वही स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस को भी वर्क करेगी. क्योंकि हर एक बिजनेस का अपना अपना मॉडल होता है. हर एक बिजनेस की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और गोल्स होते हैं. तो उन गोल्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही आपको प्रॉपर मार्केटिंग करनी होगी, तभी जाके आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे. So that's why it is really important to have that digital marketing strategy first place. सबसे पहले वो स्ट्रैटेजी आपको बनानी इज इम्पोर्टेंट. सो वो स्ट्रैटेजी आप तभी बना पाओगे व्हेन यू विल बी रियलाइजिंग, व्हेन यू विल बी एनालाइजिंग एंड रिसर्चिंग कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ अवेलेबल है. उसी के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी.
एंड उसी के हिसाब से आप आपकी टीम को एम्पावर कर पाओगे, आपकी टीम को ट्रेन कर पाओगे फॉर डिजिटल मार्केटिंग। या फिर आप अगर चाहते हो कि आप किसी लाइक किसी एक्सटर्नल एजेंसी से या फिर किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से आप अगर सर्विसेज लेना चाहते हो तो उनके उनसे आप क्या चाहते हो ये उनको आप ठीक तरीके से समझा पाओ, राइट। तो ये सारी चीजें यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह के स्किल सेट्स, आप अगर आप इन हाउस टीम बिल्डअप करना चाह रहे हो तो किस तरह के स्किल सेट्स आपको उनमें डेवलप करने होंगे। या फिर अगर आप एक्सटर्नल टीम हायर करना चाहते हो तो किस किस तरह के स्किल सेट्स आपको आपके लिए सही है, ये भी फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इसके बाद। Then, and again, the most important thing that comes in the last point that I mean in this particular thing, कि how your competitor is working online, that you have to find out. अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है और आपके एरिया में या फिर आपके लोकेशन पे आपके आपके कोई कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखते हैं, दैट डजंट मीन कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो आई ऑल्सो डोंट नीड टू बी प्रेजेंट। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जब कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपना प्रेजेंस वहाँ पे क्रिएट करिए, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मार्केट करिए। और जैसे आप मार्केट करना स्टार्ट कर देंगे सो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट knowing about you, people will start understanding about you. So all these things are very much important। जैसे गूगल माई बिजनेस पेज है, तो हर एक बिजनेस का आज गूगल माई बिजनेस पेज है जहाँ पे जहाँ पे रेटिंग्स और रिव्यूज वगैरह हमने हमने अपना लोकेशन सेट करके रखा हुआ है, हमने अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स सेट करके रखे हुए हैं। बट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि वो जो प्रेजेंस है दैट इज ऑनलाइन प्रेजेंस। हर मोमेंट पे पता नहीं आपको कि कौन सा बंदा, कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढ रहा है और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सो इन दैट केस आपको वो सारी वहाँ पे एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हैं आप अभी फिलहाल आपके साथ उन सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट वहाँ पे बना के आप पोस्ट कर दीजिए, ताकि जो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के ढूंढ रहा है। मैं फिर से आपको ग्रोसरी शॉप की एक आनी एग्जांपल दूंगी। अगर किसी को मान लीजिए रेडीमिक्स गुलाब जामुन का पैकेट खरीदना है और अगर उसने वो चीज़ डाली रेडीमिक्स गुलाब जामुन नियर बाय मी, इतनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी आजकल लोग डालते हैं, आजकल आपका बायर डालने लगा है। तो अगर उसने वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाली है और अगर आज आपकी ग्रोसरी शॉप आज एक ग्रोसरी शॉप खुली है और उस शॉप में वो अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने वो प्रोडक्ट वो चीज़ अपनी अपडेट नहीं करी हुई है गूगल माई बिजनेस पेज पे, तो वो जो बंदा सर्च कर रहा है वो आपके बिजनेस तक, आपके दुकान तक, आपकी शॉप तक नहीं पहुंच पाएगा ऑनलाइन भी। दिस इज व्हाई इट इज रियली इम्पोर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज आपका बायर किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो रोज ही दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड मनी कि जब आप बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की जैसे आप अपनी दुकान सेट करते हो, जैसे आप अपनी शॉप सेट करते हो, उसी तरह से इट हैज़ बिकम द रियली वेरी बिग रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे टू सेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आज आपकी दुकान में, आज आपके शॉप में, आज आपके शोरूम में या फिर आज आपके कंपनी में, बिजनेस में आपके कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं, कौन सी सर्विसेज आज अवेलेबल नहीं है, कौन से प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल नहीं है, ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल रखना आपके कस्टमर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके अलावा क्लोजिंग एंड ओपनिंग आवर्स वो भी यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। इफ यू लाइक आज अगर आपकी दुकान 4 बजे बंद हो रही है तो सेट इट अप ऑन योर गूगल माई बिजनेस के टुडे द ओपनिंग आवर्स आर 10 to 4। Otherwise, this would be really very this can be a really very bad impression अगर आपने लिखा हुआ है कि 10 से 10 आपकी शॉप खुली है या आपका ऑफिस खुला हुआ है एंड अगर आपका ऑफिस आज 4 बजे बंद हो गया बट आपने गूगल माई बिजनेस पेज में अपडेट नहीं किया है और कोई आपका टारगेट कस्टमर आपको सर्च करते करते उसने जब ऑनलाइन देखा एंड ही हैज फाउंड आउट यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर और वो कुछ सर्विस अवेल करने के इंटेंशन से आप तक पहुंचा नहीं है, फाइंडिंग आउट कि आपका आपका शॉप या आपका ऑफिस आज बंद है।
So this would be the very bad impression would be created. That's why it is important कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस अपडेट कर पाओ, दैट इज गुड, and that would be really helpful for your customers and as well as for you to keep on maintaining that reputation, to keep that customer uh, bonded with you, to keep that customer be there with you. भले ही आज आपकी शॉप बंद है and if he is intending to buy something from you, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि वो आज आपकी शॉप बंद है, so he may postpone, और उसे जब पता चलेगा कि you are opening tomorrow at this time, so he may postpone his intention to buy tomorrow, sorry, today at this particular moment. वो यही सोचेगा कि ओके दिस पर्टिकुलर शॉप इज नियर बाय टू मी, और ये अगर कल शॉप ओपन होने वाली है 9 बजे, so it's okay, I'll go tomorrow at 9 o'clock. This may happen, right? So इसलिए you have to really be careful about all the things, about your presence online and about updating your presence, or keep on updating your presence online. Yeah. So इसलिए ही क्योंकि people have already started accepting this digital experience. जिस दिन से ये लॉकडाउन और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई और जिस दिन से लोगों में कोरोना के लिए अवेयरनेस स्टार्ट हो गया दैट हाउ दे शुड बिहेव इन द सोशल प्लेसेस, ये जब से अवेयरनेस लोगों में स्टार्ट हो गया, ये जब और जब से people लोग घर पे रहने लगे, तभी से from that very moment people have started accepting the digital mode of purchase, digital behavior, and everything. Yeah. So that's why being business person, being a business, you also have to transform yourself. This is very much important. So आगे चलते चलते अभी फिर से will go a little deep into this, that we have to understand कि buyer का behavior कैसा होता है जब वो हमें search करता है, तो किस तरह से वो उसका सर्चिंग बिहेवियर किस तरह से स्टार्ट होता है ऑनलाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंसान जब कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सर्च करता है, तो वो तीन चीजें मेजरली उसके दिमाग में होती है दैट ही वांट्स टू नो अबाउट. सो ही वांट्स टू नो अबाउट द प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल. If like he is convinced that this particular product I'm going to buy from this particular company or this particular thing, so that brand is important, he looks for the brand, then he looks for the price. Yeah. So ये चीजें आपने क्लियर करी हुई आपके प्रेजेंस में इज वेरी, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस में इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इन शॉर्ट आपको यही मानना है और यही सोच के चलना है कि जिस तरह से मैं हम अपनी फिजिकल शॉप, फिजिकल शोरूम, फिजिकल ऑफिस, फिजिकल वेयर हाउस, ये जिस तरह से सेट करके रखते हैं, इन सिमिलर मैनर हमें अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी उतना ही सेट करके रखना है, उसी तरह से हमें उसे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके रखना है. जितना हम चाहते हैं कि लोग हमारे शॉप में आए तो उनको सब कुछ सेट दिखे, हमारे पास जितने जितने प्रोडक्ट हैं उनको सभी डिस्प्ले में दिखे, ताकि एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो जो हमारे पास अवेलेबल है और लोगों ने उसके लिए डिमांड नहीं करी, राइट? ये जैसा हम सोचते हैं जब हम when we do our physical marketing या फिर when we try to sell something physically, सेम चीज आपको आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के वक्त भी ध्यान में रखनी है कि be it your website or your Facebook page or any other social media presence, हर जगह पे आपको एकदम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखनी है, सारी चीजें चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है आपको कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो प्रोडक्ट्स कितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, अगर आज अवेलेबल नहीं है तो कब आप अवेलेबल करवाने वाले हो. ये सारी चीजें आपको जिस तरह से आप फिजिकली अवेलेबल रखते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसी तरह से आपको entirely you have to keep this information available online. This is really very much important this Abhi, in this situation and even after this. So this digital transformation, that means this is not for few months or some years. It has going it is going to go for a longer run, maybe like throughout now. इसके बाद totally everything is going to get the buying behavior would be on through digital platforms only. ये भी हो सकता है. So that's why this is really very much important to understand how you have to present yourself, how you make your presence online and make it strengthen. Yeah. So
इवन जब रिव्यूज भी होते हैं, रिव्यूज के आपके जो रिव्यूज हैं वो भी आज डिजिटली काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज एकदम बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स अगर मैं देती हूँ, कोई इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर सैलून जो बहुत अच्छा है, कि आपके किसी फ्रेंड, आपका किसी कोई फ्रेंड वहाँ पे जाके भी आया है एंड ही इज रिकमेंडिंग यू दैट पर्टिकुलर सैलून, बट स्टिल you as a buyer, you as a purchaser, you as a service gainer, आपका अभी एटीट्यूड या फिर आपका बिहेवियर ये हो गया है कि यू, भले ही आपका दोस्त आपको बता रहा है, बट स्टिल यू विल गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर सैलून ऑनलाइन, यू विल फाइंड आउट कि बाकी लोगों के रिव्यूज उस सैलून के बारे में कैसे हैं। वहाँ पे जाने से पहले you will try to find out this or this particular information, right? So अगर you being a consumer, if you have acquired this particular habit of going online and checking about that business, as well as checking about the consumer reviews, customer reviews of that particular business, so same चीज आपके business के लिए भी आपके target audiences, आपके consumers कर रहे हैं, that you have to really realize, and उसी के हिसाब से ये reviews वाला जो चीज है, ये भी आपको keep, you have to keep on updating. So if your buyer is already searching you online, so you can reach out to them, and whoever has bought the things from you, you have to reach out to them, and then you have to ask for the reviews from them, so that जब आपका बिजनेस आपके पास कोई आना चाहेगा कुछ कोई चीज खरीदने के लिए या फिर कोई सर्विस लेने के लिए, और उसके पहले जब आपको आपका कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस वो कर रहा होगा, सो एट दैट टाइम आपके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ ही साथ आपके कंज्यूमर्स, आपके कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है आपके रिलेटेड, ये भी उनको पता चलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स you have to really keep in mind after this. Yeah, so business need to start working on the post purchase communication as well. जैसे मैंने अभी कहा कि reviews, you should invite reviews, but उसी उसके साथ ही साथ you have to keep on there with them, with your buyers all the time. तो उसके लिए भी ऑनलाइन रीच आउट होना, आपके जो नए कस्टमर्स बने हैं ड्यूरिंग दिस लाइक थ्रू दिस डिजिटल मोड ऑफ परचेज, उन सारे लोगों के तक आप डिजिटली कैसे उनके साथ कनेक्शन में रह पाओगे एक बार उन्होंने परचेज कर लेने के बाद, because they have already experienced that purchase from you, so they know कि ये particular product आपके पास available है और अगर उनको और ज़्यादा कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. But to keep your brand, to keep your business in their mind, you have to really keep on reaching out to them. रेगुलर मोड पे उनको आपके बारे में हैंडल करते रहना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वेज कि आप किस तरह से उन लोगों तक पहुंचोगे. वो व्हाट्सएप मार्केटिंग हो सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, या किसी और वे में वो डिजिटल मार्केटिंग का किसी और कोई और मेथड भी हो सकता है. यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है, उसके सो दैट आफ्टर परचेज एक बार आपका उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाने के बाद, हाउ यू कैन बी देयर विद देम अप टिल देयर नेक्स्ट परचेज, ये भी आपको स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करना या फिर आपके स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग दिस सिचुएशन. And you have to really find out कि अभी during, I really need to tell you कि during this COVID-19 situation, so the highly leveraged platforms are, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो purchase behavior and all those things हैं, उस परचेज बिहेवियर के दौरान लोगों ने जब मतलब जब कोई चीज परचेज करनी चाहिए या फिर कोई सर्विस अवेल करनी चाहिए, सो उस सिचुएशन में लोगों ने कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा यूज किए हैं. सो वो मेजरली 3 प्लेटफॉर्म्स हैं. एक तो वेबसाइट या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन, देन सेकंड इज सोशल मीडिया, एंड थर्ड इज पेड मार्केटिंग, पेड मीडिया. एज इन इतने दिनों में काफ़ी सारे पेड जो स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह हम देखते हैं, उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है ड्यूरिंग दिस सिचुएशन. अगर आप भी आपका जब आप लॉकडाउन के दौरान घर पे थे, तब आप व्हेन यू विल आल्सो रियलाइज कि कभी आपने भी
कोई पेड मार्केटिंग वाला मतलब कोई स्पॉन्सर्ड एड होगी जिसको आपने एटलीस्ट क्लिक किया होगा, राइट, या फिर आपने अवेल किया होगा, वो तो मे बी दैट इज द प्रोबेबिलिटी, बट वो अगर नहीं किया है तो कम से कम आपने वहाँ पे क्लिक किया होगा, क्योंकि यू हैड गॉट सो मच ऑफ टाइम एंड ऑल्सो जिस तरह से आपने बिहेव किया है इस दौरान, सो उसी तरह से आपके कंज्यूमर्स ने भी बिहेव किया है एंड दे हैव रियली started behaving in the same way. उनका भी बिहेवियर ही पूरा चेंज हो गया है, दे हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू वेरी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स डिजिटली, मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है एंड दे रियली वांट के उनको जो चीज़ें चाहिए हैं उनके बारे में उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिले, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए है और वो प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, उनको कैसे ऑर्डर करना चाहिए, किस तरह से उसका पेमेंट मोड होगा, ये सारी चीज़ें। सो अभी अपना लेट्स अंडरस्टैंड द कंज्यूमर जर्नी, या कंज्यूमर जर्नी बिफोर कोविड 19 एंड कंज्यूमर जर्नी आफ्टर कोविड 19। सो आई इस ये जर्नी के बारे में बताते बताते मैं आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स भी बताऊंगी, ताकि आपको एक्चुअल चीज़ें पता चले कि आपको क्या when you will start thinking about creating your strongest presence online. So कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कौन से डिजिटल मार्केटिंग वेज आपको यूटिलाइज करने हैं, राइट? सो कंज्यूमर जर्नी बिफोर कोविड 19 वॉज, सबसे पहले तो आपका कंज्यूमर आपका गूगल पे सर्च करता था, आपको कोई भी चीज़ अगर उसे चाहिए, मेडिकल शॉप नियर में है या फिर उसे कोई मोबाइल खरीदना है, सो मोबाइल ऑनलाइन परचेज, वांट टू परचेज मोबाइल ऑनलाइन, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है, राइट, या फिर पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर नियर में, राइट। तो ये सारी चीज़ें वो पहले गूगल पे सर्च करता है, और जब वो गूगल पे सर्च करता है दैट मीन्स ही रीचेस टू योर वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जब आप आपकी वेबसाइट पे तक, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपकी वेबसाइट तक वो कब पहुंच पाएगा, जब वो सारे पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में अवेलेबल होंगे, आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से मार्केट की गई होगी, तभी जाके गूगल आपकी वेबसाइट को दिखाएगा उस पर्टिकुलर सर्चर को, मतलब जो सर्च कर रहा है आपके आपकी बिजनेस को, राइट। उसके बाद वो वेबसाइट पे आएगा और वेबसाइट को चेक करेगा, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट होना, सिर्फ वेबसाइट होना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सिर्फ होना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो वेबसाइट का मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन वो आपकी वेबसाइट पे आता था, वेबसाइट को पूरी तरह से चेक करता था कि क्या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, आपका बिजनेस कैसा है, क्या है, सारी चीज़ें, और उसके बाद वो आपके रिव्यूज चेक करता था। सो दैट मीन्स वो रिव्यू साइट्स पे, दैट मीन्स आपका प्रेजेंस काफ़ी सारे रिव्यू साइट्स पे होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन रिव्यू साइट्स पे आपके सारे रिव्यूज भी होना ज़रूरी है, राइट। पॉजिटिव्स मेजरली ज़्यादा, और अगर नेगेटिव्स हैं तो वो नेगेटिव रिव्यूज को आपने कैसे रिप्लाईज किए हैं ये भी वो देखेगा, राइट। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका वेबसाइट हो फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो सर्च करके आपके आपकी वेबसाइट ढूंढ रहा है। सेकेंड थिंग, वो जब सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट उसे दिखे, इसके लिए आपकी वेबसाइट का प्रॉपर मार्केटिंग हुआ होना ज़रूरी है। जब वो वेबसाइट पे आएगा और आपके वो उसको जो चाहिए प्रोडक्ट वो ढूंढ रहा है, सो उस वक्त वो उसको वो सारे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है, जो आपकी वेबसाइट पे वो प्रॉपरली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आपके पास जो भी वो जो इंसान जो प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा है, उसके अलावा भी आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट वो जो प्रोडक्ट चाह रहा है खरीदना, उसके साथ साथ अगर उसे पता चल रहा है आपके आपके पास और भी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकता है। इसकी वजह से वो जो जो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है उन सारों की इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। देन थर्ड स्टेप, जब वो रिव्यूज चेक करना चाह रहा है आपके बिजनेस के बारे में, तब आप रिव्यू साइट्स पे अवेलेबल हो, ये भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके काफ़ी सारे रिव्यूज़ हो, पॉजिटिव रिव्यूज़ हो, वो ज़रूरी है। नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो उन पे आपके पॉजिटिव कमेंट्स डाले हुए हो, ये भी ज़रूरी है, ताकि उसका ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्डअप होने में मदद हो जाए। अभी इसके बाद बिफोर कोविड 19, एक बार रिव्यूज उसने चेक चेक कर लिए एंड ही हैज रियली डेवलप्ड दैट ट्रस्ट ऑन यू कि ओके, दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज गुड,
this particular product is good. I now I can like I want to buy this product from this particular company, from this particular business. So what he'll do, he'll search for your location. मतलब वो पहले ऐसा था कि वो चाहता था वो सारा रिसर्च आपके बारे में ऑनलाइन करेगा और अल्टीमेटली विल डिसाइड टू कम टू योर शॉप एंड परचेज इट फिजिकली। या तो उसके लिए वो लोकेशन ढूंढता था कि आपकी शॉप कहाँ पे है, तो उसका इसलिए आपका ऑनलाइन लोकेशन अवेलेबल होना, वो भी प्रॉपर तरीके से लोकेशन अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका मैप अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके ओपनिंग आवर्स क्लोजिंग आवर्स अवेलेबल होना ज़रूरी था। और उसके बाद he used to come to your physical shop to make the purchase, right? This was the consumer journey and this is how COVID-19 के पहले भी आपका डिजिटल प्रेजेंस इस तरह से ज़रूरी था, एटलीस्ट टिल द मतलब टिल मैप, राइट? मतलब वेबसाइट होने से लेके आपका मैप ऑनलाइन अवेलेबल होने तक। बट अभी आफ्टर 19 द कंज्यूमर जर्नी हैज टेकन अ लिटिल टर्न। मतलब वेबसाइट होना, उसमें वेबसाइट का प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग होना, देन आपके आपका प्रेजेंस रिव्यू साइट पे साइट्स पे अवेलेबल होना, लाइक आई मीन आपके काफ़ी सारे रिव्यूज अवेलेबल होना, आपका ये सारी चीज़ें तो अभी भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें तो अभी भी ज़रूरी है। बट उसके बाद अभी ये प्रॉब्लम है कि लोग आपके फिजिकल शॉप में नहीं जाना चाहते। वो डायरेक्टली आपका अगर उन्होंने मन बना लिया आपका वेबसाइट देखने के बाद, आपके रिव्यूज चेक करने के बाद, जब उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट इनसे खरीदना है, सो नाउ दे आर कमिंग बैक ऑन योर वेबसाइट एंड दे आर फाइंडिंग द ऑप्शन टू गेट द ऑर्डर ऑनलाइन, to reach you online, right? So maybe यहाँ पे आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो, अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं तो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट होना ज़रूरी है, या तो फिर आपका ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस हो, ऑर्डर एंड पेमेंट ऑप्शंस होना ज़रूरी है, या फिर उससे भी एक स्टेप आगे जाके बहुत ईज़ी देना चाहता हमें अपने कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा ईज़ देनी है, तो आपका एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन है एंड इफ यू आर आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपके वेबसाइट में इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है, आपका डाउनलोड ऑप्शन लेके रखा हुआ है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गो ऑन एंड मेक द परचेज। और ये या लाइक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से एक बार परचेज करेगा, उसके बाद व्हेन यू आर इन कांस्टेंट टच विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो ही विल रियली कम बैक गो बैक, बिकॉज उसका आपका एप्लीकेशन आपके उसके मोबाइल में ऑलरेडी है। इसकी वजह से वो किसी और ब्रांड के पास या फिर किसी और बिजनेस के पास जाने से पहले आपके पास ढूंढेगा, डायरेक्टली उस एप्लीकेशन में जाके ढूंढेगा कि आपके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं फिलहाल अवेलेबल, एंड ये डायरेक्टली make the make the purchase. Yeah. So this is how the consumer journey has changed now. पहले जो इंसान सारा रिसर्च ऑनलाइन करने के बाद आपके पास फिजिकली आके वो परचेज करना चाह रहा था, अभी कार या फिर ऑटोमोबाइल्स का भी बायर हैज चेंज इट्स कंज्यूमर परचेज जर्नी, राइट? उसका एंड वो ऑर्डर जो भी परचेज करना है उसे, वो भी अभी ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से अभी डिजिटली प्रेजेंस होने की और आपका प्रेजेंट होने की और आपका बिहेवियर सॉरी और आपका मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। बिकॉज जब कोई इंसान ढूंढ रहा है आपको, तो आपको वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर मोबाइल मार्केट है और मोबाइल मार्केट में ही अगर आप मोबाइल की शॉप खोलना चाह रहे हो, तो आपको एकदम लॉजिकली पता है कि मोबाइल मार्केट में ही मैं अपना शॉप खोलूँगा, तो मुझे कस्टमर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सेम इज़ द केस नाउ विद डिजिटल प्रेजेंस। अगर आप आपका डिजिटल प्रेजेंस बना के रखेंगे, तभी जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स आप तक पहुँच पाएंगे। बिकॉज just don't forget that your customer, your target audience, your consumer is looking for your business, looking for your product or service online. And if you are not available online, that means you are you are losing your customer over there. Okay. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक यूजफुल लगी होगी, यूजफुल रहेगी, सो दैट नेक्स्ट
आप अपना डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रैटेजाइज करने में आपको हेल्प होगी। सो आपके अगर आपने आप में से किसी ने कोई क्वेश्चंस डाले हैं, सो सेशन के बाद वी विल रियली फाइंड आउट कि हम किस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। So, really, thank you so much for joining us here today at this hour and taking interest in knowing more about how to transform yourself, your business digitally, and how and why it is important. Yeah. So thank you so much, everyone, and I'll really try to answer your questions if there are any, and we'll try to meet you soon if you want to have a different discussion on this particular topic on really further. Okay. Thank you so much, and bye for now. Yeah. Okay. So guys, I'm back. So here just now we are up to the ending ceremony, and I've written so many points about Anaga session. And thank you so much, Anaga, for such an informative and insightful session on how to transform your business digitally during this current scenario. So, friends, I would like to add a few points and how all the social media online platforms are so useful for growing our business, and how to find our target audience, and how we can grow our online presence digitally, and to explore all the portals for our business, and how can we hit all our buyers digitally. So friends, these are so many points she explained, and I would highly recommend to all of you, if you wish to take your platform digitally, so please do connect to her. And she is the founder of digital media digital platter, and do connect to her for that. And that's all for now, and thanks to all of you for watching this, finding your time and watching this and attending the sessions. Friends, I would like to add up one more thing. We will be conducting Sampark Gurukul live series on every alternate Saturdays. And so friends, stay tuned with us for that, for a lot more training stuff. And now I am signing off. This is Reet Rupani from Sampark. Thank you. God bless. Bye bye.